Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Welcome back once again. Students, our today's topic is exercise 2.6. We will see question number 1 of exercise 2.6. Before moving towards the topic, our previous knowledge is we have discussed in the previous video lecture regarding the concepts of complex numbers, regarding the concepts of real numbers. We have also discussed in the previous video lecture regarding the conjugate of real number and conjugate of complex number. In the previous lecture, we also solved exercise 2.5, and your homework was you had to complete exercise 2.5. Moving towards the new topic, our today's target is to complete question number 1 of exercise 2.6. We have chapter number 2. The name of the chapter is real and complex numbers. Chapter number 2, exercise 2.6. So those students who have books, kindly open your books in front of yourself so that it would be better for you to see that what we are doing and how we have to solve our question number 1 of exercise 2.6. So for this purpose, you have to open your book page number 52. Moving next class, exercise 2.6 question number 1. The statement is identify the following true or false. So what we have to do is basically we have to tell whether these statements are true or false. Students, we have multiple parts. We have 7 parts over here. We are going to see each part individually, and we will be discussing about it how we have to solve this question, and at the end we will tell that whether the statement is true or false. Moving towards question number 1, part number 1. Here students, you can see our part number 1 is under root minus 3 into under root minus 3, that is equal to 3. This is basically a statement. We have taken left hand side. Can we write under root minus 3 as minus 1 into 3? Yes, we can write. अच्छा, we have multiple solutions to solve this question students. हमारे पास इस वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं. हमने ये वाला मेथड, हम इसको अंडर रूट माइनस 3 इंटू अंडर रूट माइनस 3 को अंडर रूट माइनस 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर माइनस 3 सिर्फ रह जाएगा हमारे पास. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट मेथड. बट द थिंग इज़ कि हम जिससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे सोल्यूशन भी उसी से रेलिवेंट होने चाहिए. For that purpose, as we are discussing about iota and imaginary values, so we will solve this question by using some imaginary value. माइनस 3 को हमने माइनस 1 इंटू 3 लिख लिया, इसको भी माइनस 1 इंटू 3 लिख लिया. फिर हमने ये हमारे पास प्रॉपर्टी है रेडिकल्स की कि हमने इन रेडिकल साइंस को सेपरेट कर लिया. ये हमारे पास माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, और ये अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 आ गया. एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट माइनस 1. सो हेयर वी हैव अंडर रूट माइनस 1. इसको हमने आयोटा से रिप्लेस कर दिया, इधर भी आयोटा से रिप्लेस कर दिया. उसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन की है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, एंड अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 होल स्क्वेयर. ये स्क्वेयर आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा. वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट इज़ 1/2. तो जब 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 3 रह जाएगा. सो वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर इट विल बी -1, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी -3. एज -3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड 3 के इक्वल आ रही है या नहीं. जब हमने सॉल्व किए तो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड -3 के इक्वल आ रही है. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये फॉल्स है. मूविंग पार्ट नंबर 2, वी हैव आयोटा पावर 73, और हमने इसको प्रूव करना है कि वेदर दिस आयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा. तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि क्या ये आयोटा पावर 73 माइनस आयोटा के इक्वल आती है या नहीं. सबसे पहला स्टेप, ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी आयोटा की पावर आ रही है तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम आयोटा की पावर को देखें, अगर तो वो ऑड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करें. इवन में कन्वर्ट करने की रीज़न ये है कि जब भी आपके पास इवन पावर होगी तो वो इवन पावर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. और स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की रीज़न ये है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गिवन होती है, तो हम वो -1 को पुट करके अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपने ऑड पावर को इवन पावर में कन्वर्ट किया इनटू आयोटा. ये चीज़ हमारे पास आ गई बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. उसके बाद हमने आयोटा पावर 72 को 2 पावर 36 लिख लिया, क्योंकि 36 × 2 विल बी इक्वल टू 72 इनटू आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ गया.
देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर जो कि -1 है, माइनस जब 36 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो +1 इंटू आयोटा दैट वुड बी इक्वल टू आयोटा। जबकि स्टेटमेंट थी हमारे पास कि आयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, लेकिन जब हमने आयोटा पावर 73 को सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास आंसर सिर्फ आयोटा आया है, पॉजिटिव आयोटा आया है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसका जो पार्ट नंबर 3 है क्लास, दिस इज टोटली सिमिलर टू पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 इज टोटली सिमिलर टू जो हमने एक्सरसाइज 2.5 की है, उसमें जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयोटा पावर 73 इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन एक्सरसाइज 2.5। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4, द पार्ट नंबर 4 इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। स्टेटमेंट ये है कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो क्या वो ये आएगा, ये हमने बताना है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज योर z -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, दिस इज योर z। आयोटा स्क्वेयर की जगह पे वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर -1 पुट कर दिए, देन वी विल फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई -6 आयोटा माइनस आयोटा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z। सो व्हेन वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ z इट विल बिकम z बार, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमने जो आपकी इक्वेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, रियल नंबर पहले कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट हमने बाद में कर लिया है। यू कैन सी दिस कि हमने इस फॉर्म में लिख लिया a प्लस बी आयोटा, और a प्लस बी आयोटा इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज बेसिकली पहले आपका रियल नंबर आता है और उसके बाद आपका इमेजिनरी पार्ट आता है। दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 में भी देखेंगे, और इस क्वेश्चन में भी मैंने इस स्टेप में यही किया है कि ये हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया था, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। सो इट विल बी -1 -6 आयोटा। नाउ वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इज बेसिकली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम -1 + 6 आयोटा। तो क्या हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर ये आया है -1 + 6 आयोटा? यस, -1 + 6 आयोटा। So this statement is true because the complex conjugate of this is basically this, and we have proved it. Moving towards the fifth part, students, this is basically a statement in which the statement is difference of complex number. Here we have a complex number. Difference of complex number and its conjugate is a real number. ये statement है कि अगर हमारे पास कोई complex number है, उसका conjugate और उसका difference इज़ रियल नंबर, तो हमने ये चेक करना है कि अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। सो व्हेन वी विल टेक सम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आफ्टर टेकिंग द कॉन्जुगेट व्हेन वी विल टेक द डिफरेंस, तो क्या उसका आंसर रियल नंबर आता है? इफ़ येस तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, अदरवाइज ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो दिस इज अवर z। हमने z का कॉन्जुगेट लिया तो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, इट विल बिकम a माइनस आयोटा b। नाउ वी विल टेक द डिफरेंस। डिफरेंस इज बेसिकली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z बार, a प्लस आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया। हेयर वी हैव अ माइनस साइन इन बिटवीन, हेयर यू हैव माइनस साइन, तो जब आपकी ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस साइन की वजह से अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। So it will become a plus iota b minus a plus iota b plus a and minus a will be cancelled with each other. So हमारे पास iota b और iota b रह जाएगा। iota b plus iota b is equal to 2 iota b. So क्या ये हमारे पास रियल नंबर है स्टूडेंट्स? No, this is not a real number. Why? Because here we have a imaginary part as well. हमारे पास iota imaginary का साइन भी आ रहा है, कि वैल्यू भी आ रही है, दैट्स वाई ये हमारे पास एक रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर वो होता है कि जिसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एज वेल। सो इसमें हमारे पास आयोटा रिमेनिंग आंसर में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका कॉन्जुगेट लें और जब उसका डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास एक रियल नंबर नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। Student, moving towards part number 7, this would be our last part of question number 1. I am going to make a new video for part number 7. Thank you.